کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا قریب تھے. ایک مرتبہ کعبۃ اللہ پہ کوئی چیز تھی آویختہ تھی لٹکی ہوئی. ہمارے آقا نے فرمایا علی ہم تم کو اٹھا دیں اور تم دیکھ لو کیا چیز ہے. اللہ کے محبوب کو طاقت بہت زیادہ عطا کی گئی تھی. میں اپنے بیان میں عرض کیا کرتا ہوں 40 جنتی جوانوں کے برابر مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت عطا کی گئی تھی. اور جنتی ایک جوان دنیا کے 100 جوانوں کے برابر طاقت رکھنے والا، یعنی دنیاوی 4000 جوانوں کے برابر طاقت عطا کی گئی تھی. مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا نے فرمایا علی ہم تم کو اٹھا دیں تم دیکھ لو کیا چیز لکھی ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ ذرا بے ادبی ہو جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ اور وہ طاقتور تھے ہی کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت چھوٹے قد کے تھے اور طاقت بہت زیادہ تھی. قد بہت چھوٹا تھا اور طاقت بہت زیادہ تھی. ایک بار میں کئی وار کرتے تھے، اسی لیے ان کو کرار کہا گیا. کرار کے معنی جو بار بار حملہ کرے، ایک ہی بار میں پیٹ دے. طاقتور بہت تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں گھوڑے کی طرح بن جاؤں، یعنی دونوں ہاتھوں کو ٹیک دوں، گھٹنوں کو ٹیک دوں، میری پیٹھ پر آپ تشریف لائیں، آپ ہی مظاہرہ فرما لیں، دیکھ لیں کیا چیز لکھی ہے. آقا علیہ السلام نے کہا علی سنو یہ بار نبوت ہے. آپ کی پیٹھ پر اللہ کے محبوب نے دست مبارک رکھا. حضرت علی چیخ اٹھے، پیٹھ کھینچ لی. اللہ کے محبوب ذرا ہم پھر سے سنبھل جائیں تب آپ دست مبارک رکھیں. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ذرا پھر اس کے بعد جب وہ اور سنبھلے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے دوبارہ اپنا دست مبارک پھر رکھا حضرت علی کی پیٹھ پر، ذرا طاقت لگائی، پھر وہ چیخ اٹھے. کہا اللہ کے محبوب میں اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤں گا. اور تھے کتنے طاقتور. خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے ایسے پھینک دیا تھا، بہت سارے پہلوان مل کر جس دروازے کو کھول نہیں پاتے تھے ایسے اکھاڑ کے پھینکا، بڑی دور جا کے گرا. اتنے طاقتور تھے کہ دروازے خیبر کو حیدر نے اکھاڑا تھا. دروازے خیبر کو حیدر نے اکھاڑا تھا. خیبر کے مکینوں کا کیا حال ہوا ہوگا. اتنی زیادہ طاقت تھی. چیخ اٹھے کہ ہمارے برداشت سے باہر ہے. قربان جاؤں جو میں کہنا چاہتا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے ظاہری عمر مبارک سے تھوڑا فرق تھا. آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. آسان ہے؟ محبوب دو جہاں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا ہے اور کندھوں پہ بٹھا کر غار ثور کی بلند پہاڑی پر ایڑیوں کے بل چڑھتے چلے جا رہے ہیں. پنجوں کا سہارا نہیں لیا. پنجوں کا سہارا لیتے عرب کے لوگ ہوشیار تھے، پنجوں کے نشانات کو سمجھ کر پیچھا کر لیتے. بہت عقل مند تھے. انہوں نے ایڑیوں کے بل چڑھنا پسند کیا. ایڑیوں کے بل چڑھ گئے، پنجوں کا سہارا نہیں لیا. چڑھتے چلے گئے اور غار کے اندر چلے گئے. تو جب وہ جا رہے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ شب ہجرت یہی روح الامی فرماتے جاتے تھے. شب ہجرت یہی، شب ہجرت یہی روح الامی فرماتے جاتے تھے. نبی ہوں جس کے، نبی ہوں جس کے کاندھوں پر وہ قسمت اور ہوتی ہے. نبی ہوں جس کے. کیسی محبت کی بات تھی. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ محبت کی بات میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی دوسرے کا سامان 2-3 کلو کا ہو، آدمی ہاتھ میں ٹانگنا چاہے تو تھک جائے گا. کہا بھیا سامان بڑا وزن آپ ہی سنبھالو. ارے بولو تھکتا نہیں تھکتا. اور یہ بات ہماری ماں بہنیں قاعدے سے جانتی ہیں، سامان 2-3 کلو لینے میں تھکاوٹ آتی ہے، لیکن اگر اپنا بچہ ہو
और वजन 10, 12, 15 किलो का हो जाए, थकने लगे, सीधे गोद में उठा लेते, कोई थकावट नहीं आती। थकावट हमको आपको भी नहीं आती। अरे बोलो है कि नहीं? पैदल जा रहे हो, बच्चा थक रहा हो तो 10-12 किलो का वजन भी है तो बच्चे को गोद में चिमटाए हुए हैं, मुंह चूमते हैं, लगाए हैं सीने से, थकावट का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। ये मोहब्बत की बात है, बच्चे से मोहब्बत है, उसका वजन महसूस नहीं होता। बोझ को उठाए हुए हैं और दूसरे का 2 किलो सामान उठाने में थकता, भाई साहब बड़ा वजन है, झोला आप संभालो। कोई कहता है सब्जी लेता ना, कहे भैया हमारे बस के नहीं, 2 किलो आलू टांग के लाए, भारी है, वजन है। अरे बोलो है कि नहीं? मोहब्बत की बात है दोस्तों। कितनी मोहब्बत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 नबूवत अपने कंधों पर रखे हुए हैं और सीधे गारे सौर की बुलंद पहाड़ी पर चढ़ते चले गए। जाने वाले जानते हैं कितनी ऊंची पहाड़ी। गए, साफ सूफ किया, हमेशा अल्लाह के महबूब को आगे रखते थे। जब वहां तक पहुंचे तो अल्लाह के महबूब को पीछे छोड़ अपने आप ही आगे चले गए। इसलिए आगे गार में चले गए कि आका हमारे बचते रहें, हम पहले जाएं। कोई चीज हो हटा दें, तकलीफ दे चीज हो हटा दें, कोई जानवर हो वो भी दूर हो जाए, कोई मूजी हो उसको भी दूर कर दें, और जब साफ सुथरा हो जाए तब अल्लाह के महबूब को बुलाएं। अल्लाह अकबर। अंदर चले गए, पूरी सफाई कर ली। जब सफाई कर ली, और ये तो मशहूर है कि सारे सुराखों को भर दिया, एक सुराख बाकी रह गया, उसके लिए कपड़ा घटा तो आपने अपने पैर को लगा लिया। अल्लाह के महबूब आपके जानुए मुबारक पर सर रखकर सो गए। नींद ऐसी आई, सो ही गए। जब सो गए, थके थकाए थे, हिजरत करके गए थे, बहुत थके थे, सो गए, नींद आई। इतने में सांप ने डस लिया। जब सांप ने डसा तो पैरों को हिलाया नहीं, जुम्बिश नहीं कि अल्लाह के महबूब को जगाया नहीं, बेदार नहीं किया। किस लिए बेदार नहीं किया? कि अल्लाह के महबूब की नींद में खलल ना आए, आप थके थकाए हैं, खलल ना आए, इतना ज्यादा ख्याल किया हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जहर असर करता ही चला गया, आंखों से आंसू आए। इस पर मैं अर्ज किया करता हूँ, जब कोई रोने वाला रोता है तो उसके आंसू उसके चेहरे पर होते हैं, उसके दामन पर होते हैं, उसकी तकिया पर होते हैं, और आंसू जमीन पे भी गिरते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रोए हैं, उनके आंसू सीधे चेहरे अनवर पर गिरे हैं। महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के मैदान में हर एक की गवाही पेश की जाएगी। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के महबूब का चेहरे अनवर बोलेगा, परवरदिगार मैं आखिरी नबी का चेहरा सिद्दीक की सदाकत के लिए गवाही देता हूं कि इनके आंसू मेरे चेहरे पर गिरे। कि मूजी ने डसा फिर भी जगाया ना अदब से, मूजी ने डसा फिर भी जगाया ना अदब से, सिद्दीक मुकर्रम सी वफा कौन करेगा, सिद्दीक मुकर्रम सी वफा कौन करेगा। खुदावंद कुद्दूस सच्ची इत्तबा, सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हालात आते रहेंगे और बोलो है कि नहीं, बिगड़ने वाला कुछ नहीं है, दुनिया ये आनी जानी है। अच्छा बनाने वाले बनाते रहे, किसी का आज तक कुछ बना ही नहीं है, कुछ बनबे नहीं किया। अरे बोलो है कि नहीं, किसी का बना है भैया? नहीं, हमारे दादा बनाते चले, हमारे वालिद बनाते आए, हम भी वही काम करते हैं, कुछ बनी है दुनिया? बनी नहीं है। आप सब जानते हैं कोई चूकता नहीं, हर आदमी अपने बच्चों के लिए बनाते हैं और बनी अब तक नहीं है। ये दुनिया अनबनी है, बनने की जगह ही नहीं है। ये जिसने आखिरत को बनाया उसका मामला बना है, जो दुनिया में चूक गया बनाता रहा, बना कुछ है नहीं। बादशाहों ने बनाया, अमीरों ने बनाया, नवाबों ने बनाया, फकीरों ने बनाया, सबने बनाया, और किसी की बनी अब तक नहीं। कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की
دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بناتا ہر کوئی ہے لیکن یہ بننے کی جگہ نہیں، بننے نہیں پائے کسی کا، کہ آئے گدا اور شاہ اور آ کر چلے گئے، دار فنا کی خاک اڑا کر چلے گئے، وہ تخت پر رہے یہ رہے بوریا نشی، مرقد میں اپنے دونوں برابر چلے گئے۔ قبر میں گئے، بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، امیر ہو چاہے غریب، سب برابر ہو گئے۔ اللہ صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے محبوب پر بار بار درود پاک ہو۔ اللہ کے محبوب کے احسانات امت پر بے شمار ہیں، اور ہمارے آقا اس وقت بھی نہیں بھولے جب آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ علیہ وسلم آخری جو بخار آیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کو، حضرت جبریل امین علیہ السلام جب آخری بالکل دن ہو گیا، جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے دروازے پر حاضری دی اور اجازت مانگی کہ اللہ کے محبوب میں حجرے کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے محبوب میں تنہا نہیں آیا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا میرے ساتھ تو حضرت اسرائیل بھی ہیں۔ تو آقا سمجھ گئے اسرائیل کا آنا وہ فرشتہ ملک الموت ہے۔ آقا سمجھ گئے کہ اب ہمارا وقت پورا ہے۔ کہ وہ فرشتہ بھی اندر آنا چاہتا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اسرائیل کو بھی اندر آنے دو۔ صرف و صرف سارے جہان میں یہ مقام اللہ کے محبوب کا کہ فرشتہ ملک الموت کو بھی حاضری کی اجازت لینی پڑے، ورنہ چاہے کوئی بادشاہ ہو، طاقتور ہو، منتری ہو، کوئی بھی ہو، چاہے جتنا طاقت کا مالک ہو، وہاں فرشتے کو اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، فوراً جا کے اپنا کام تمام کر دیتا۔ اللہ نے اس پر یہ کام دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کے کہنے لگے جبریل امین ذرا آپ کہہ دو کہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جبریل امین نے فرمایا کہ میری ہمت نہیں ہے۔ اسرائیل تم کہہ دو، کا ہمت ہماری نہیں ہے، ملک الموت ہے اور اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ بڑے بڑے امیروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس، طاقتور لوگوں کے پاس گیا، کبھی اس کو کوئی دقت نہیں آئی، لیکن اللہ کے محبوب کے پاس بولنے سے مجبور ہے کہ اب ہماری ہمت نہیں، کیا کہیں۔ کہا جبریل امین ہماری ہمت نہیں پڑتی، آپ کہہ دو۔ وہ بھی کہیں تو کیسے کہیں کہ آپ کا وقت پورا ہو چکا، نہیں کہہ پائے۔ کہنا تو دور کی بات ہے، معراج والی رات میں وہ جگہ نہیں پائے۔ براق باہر کھڑا ہے، حرم سے باہر براق کھڑا ہے، تیار ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام لیٹے ہوئے حضرت ام ہانی کے گھر میں۔ جگانے کی ہمت نہیں پڑی۔ جگاؤں تو کیسے جگاؤں، اللہ کے محبوب سوئے ہوئے، کیا پیر دبا کے جگاؤں؟ نہیں، جگانے والوں نے اس طرح بھی جگایا۔ مونڈھا پکڑ کے ہلا دوں، نہیں، بے ادبی ہو جائے گی، کیسے جگاؤں؟ پیٹھ سہلا کے جگاؤں، نہیں، کیسے جگاؤں؟ کیسے، کیا انداز ہو جگانے کا؟ آواز آئی، سنو جبریل امین، جگانے کا انداز یہ ہونا چاہیے جو تم کو میں نے تاج ملکوتیت دیا ہے، جو فرشتوں کی سرداری کا تاج ملا ہوا ہے نا، اس تاج کو محبوب دو جہاں کے تلووں سے رگڑ دو، اور کوئی صورت جگانے کی نہیں ہے۔
न सर हिला के जगाओगे, न मूंढा पकड़ के जगाओ, न पैर को दबा के जगाओगे, किसी तरह नहीं जगा सकते। सीधे वो फरिश्तों का जो तुमको सरदारी का ताज मिला है ना, उसी ताज को महबूब दो जहां के तलवों से रगड़ दो, अल्लाह के महबूब बेदार हो जाएंगे। इस पर मैं एक शेर कहा करता हूं, याद आया कि सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, सोए हैं वो बज़ाहिर, सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, तलवे से उनके कुदसी, तलवे से उनके कुदसी पेशानी मल रहा है, तलवे से उनके कुदसी। आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है, जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है, जिब्रील बोले आका सरकार हुक्म हो तो हाजिर करूं सवारी, सजकर बुराक़ अनवर दरवाजे पर खड़ा है, सजकर बुराक़ अनवर। सोते हुए अल्लाह के महबूब को जगाने की हिम्मत जिब्रील अमीन की उस वक्त को कह सकते हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने माजरत की, मैं नहीं कह पाऊंगा इज़राइल, तुम ही बता दो। उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा। कहा आप ही बता दो। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह के महबूब, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। इतना ही कहा, ये नहीं कहा टाइम पूरा हो चुका, नहीं बाबा हिम्मत नहीं है। जिनके सदके सारा जहान है, वजह तख्लीके कायनात है, हिम्मत नहीं पड़ी। कहा अल्लाह की मुलाकात का मुश्ताक, अल्लाह मुलाकात करना चाहता। आका ने फरमाया जिब्रील अमीन मैं तो तैयार हूँ, मेरी तरफ से तुम चले जाओ, अल्लाह से जरा मालूम करके आओ जल्दी से। क्या मालूम करके आओ? ए जिब्रील अमीन मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, जल्दी जाओ अल्लाह से मालूम करके आओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह से पूछा परवरदिगार आपका महबूब ये कह रहा है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। रब ने फरमाया जाके मेरे महबूब से बता दो कि जो आदमी 1 साल पहले सच्ची तौबा कर ले उसको माफ कर दिया जाएगा। आए और कहने लगे, आका ने फरमाया जिब्रील अमीन तुम अब दोबारा जाओ। दोबारा क्यों जाओ? मेरी उम्मत इतनी होशियार नहीं कि 1 साल पहले सच्ची तौबा कर ले, पता नहीं कब करे कब न करे। जिब्रील अमीन तुम वापस जाओ, जल्दी से अल्लाह से मालूम करके आओ, कुछ कमी की बात हो जाए। फिर आए, महीने की बात हुई, हफ्ते की बात हुई, दिन की बात हुई, आका ने फिर भेजा जिब्रील अमीन तुम फिर से जाओ। और आखिरी बार जब गए तो अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्रील अमीन मेरे महबूब को बता दो जो मरने से पहले पहले सच्ची तौबा कर लेगा उसको भी हम बख्श देंगे, माफ कर देंगे। कितनी बार आए, कितनी बार गए, कितनी तेज आए। इसको अल्लामा शेख सादी ने कहा, मैं अर्ज किया करता हूँ, चश्म ज़दन जितनी देर में पलक झप जाए वो सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान से जमीन पर उतरते थे। अल्लाह ने उन्हें 600 बाजू अता फरमाए, उनके बाजू में परों में हीरे जवाहरात मोतियां टकी हुई हैं, वो है हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। जब मेराज वाली रात में एक शेर अर्ज करूंगा कि हर एक कदम पर जाता था मेराज की शबता हद नजर, हर एक कदम पर जाता था मेराज की शबता हद नजर, सोचो के बुराक़े अनवर की रफ्तार का आलम क्या होगा, सोचो के बुराक़े अनवर की। उनको टाइम नहीं लगा, गए आए, ये तो हमारे कहने में टाइम लगता, उनको आने जाने में टाइम नहीं लगता।
देखा गया अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे, एक बार चेहरे पे तबस्सुम है, मुस्कुराहट है। पूछा गया अल्लाह के महबूब आप मुस्कुरा रहे, चेहरे पर खुशी के आसार हैं, वरना सारी जिंदगी तो उम्मत के गम में अल्लाह के महबूब रोते रहे। सच तो ये है हम अपने बच्चों के लिए रोते हैं कि तंगी ना आने पाए, बीवी के लिए रोते हैं बीमार ना होने पाए, बुढ़ापे में साथ छूट जाएगा, घरों बार माल के लिए रोते हैं कहीं ये छीन न जाए। अरे बोलो है कि नहीं? कुर्बान जाऊं, अल्लाह के महबूब किसी चीज के लिए नहीं रोए, ना आप अपनी अज़वाजे मुतहरात बीवियों के लिए रोए हैं, ना बच्चियों के लिए रोए हैं, ना किसी और बात के लिए रोए हैं, ना हजरत हसनैन जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं उनके लिए भी नहीं रोए हैं। अगर हमारे आका रोए हैं तो उम्मत के लिए रोए हैं। इस पर मुझे एक शेर याद आया कि आंखें रही है उम्र भर फिक्रे नजात में ही नम, फिक्रे नजात में ही नम, आंखें रही है उम्र भर फिक्रे नजात में ही नम, आका को मेरे किस कदर, आका को मेरे किस कदर उम्मत से अपनी प्यार है, उम्मत से अपनी प्यार है। उस वक्त अल्लाह के महबूब मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर खुशी के आसार है, तबस्सुम है। पूछा गया अल्लाह के महबूब आप मुस्कुरा रहे, चेहरे पर बड़ी खुशी है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे ऊपर आयत करीमा नाजिल हो गई, सूरह ज़ुहा की पूरी सूरह नाजिल हो गई, उसमें से एक आयत है जो बहुत ज्यादा खुश करने वाली है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, ए नबी इतना दूंगा कि आप राजी हो जाओगे। अल्लाह का महबूब मुस्कुराए, चेहरे पर खुशी के आसार हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब ने रजामंदी की बात की, ए महबूब मैं इतना दूंगा, इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। आका कहते हैं मुझे पूरी खुशी उस वक्त तक होगी ही नहीं जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत न पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, आखिरी वक्त तक अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उम्मत को नहीं भूले। एक हम आप इतने गए गुजरे हैं कि हर मौके पर भूल जाते हैं। अरे बोलो भूलते नहीं भूलते? खुशी के मौका पर भूलते हैं, गमी के मौका पर भूलते हैं, किसी मौके पर अल्लाह के महबूब को भूला न जाए। और सच तो यह है बगैर अल्लाह के महबूब की शफाअत और सिफारिश के जन्नत मिलने वाली नहीं है। जन्नत तो अल्लाह के महबूब की गुलामी में है। ईमान वालों बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये हालात जो दिखाई पड़ते हैं, मैंने अभी अर्ज किया, हालात आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन है क्या? अपना सब कुछ है नामे नबी के लिए, हम मुसलमान हैं बस इसी के लिए। दीन पर जानो दिल, दीन पर मालो जर सब निछावर करे, यह जरूरी है हर उम्मती के लिए। तूने सोचा भी है ए मुसलमान कभी तेरे दुनिया में आने का मकसद है क्या? बुत शिकन बन के आया है ज़ेरे समा, बुत शिकन बन के आया है ज़ेरे समा, या के आया है तू आज़री के लिए। तय करो शमए रिसालत के परवानों, ये जो हालात दिखाई पड़ते हैं, अल्लाह के हुक्मों का तोड़ना, अल्लाह के महबूब की गुलामी छोड़ना, दो जुर्म हमारे पास हैं। ये तय करो यही करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह ने जिस जन्नत की बात की है, मैंने कुरान मुक़द्दस से वो आयत करीमा पढ़ी, चंद आयतें तिलावत की। आखिर में जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, ऐसे मोमिन कामयाब हुए जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं।
हिफाजत से मुराद नमाज अपने वक्त ही पर हो, टाल मटोल और वक्त के बाहर न हो। नमाज का वक्त अल्लाह ने तय फरमाया है और लिखा रहता है हर मस्जिद में, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। नमाजें अपने तयशुदा वक्त ही पर फर्ज है, आगे पीछे नहीं। एक तो ये बात, एक मसले की बात आई, 1 मिनट में अर्ज कर दूं कि यहाँ 3:19 पे जोहर का वक्त खत्म हो जाता, असर का वक्त शुरू होता। आज जो देखा मैंने, हमको पढ़ना था उस वक्त नमाज, कहीं कोई वक्त है कहीं कोई वक्त है। सूरज के पूरा पश्चिम होने से वो टाइम घटता बढ़ता, वो एक अलग बात। कोई नमाजी आया, उसने नियत बांधी 3 बजे के फौरन बाद और कहा नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज आज की जोहर की कज़ा वक्त असर, और 3:10 पे उसने मिसाल के तौर पर नियत बांध ली, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज आज की जोहर की कज़ा वक्त असर, और जोहर का वक्त अभी बाकी। कज़ा की नियत के साथ बांध लिया और टाइम अभी बाकी। पूरी तवज्जो के साथ सुन लीजिए, कभी ऐसी भूल हो जाए तो। नियत बांध ली, नमाज पढ़ चुका, फिर देखा अभी तो जोहर का टाइम बाकी था, वो तो 18-19 तक बाकी है, और नमाज की नियत उसने कज़ा के साथ बांधी है, तो नमाज उसकी अदा मान ली जाएगी, दोहराना नहीं पड़ेगा। नमाज कैसी मानी जाएगी? नमाज उसकी अदा मान लीजिएगा। मौलाना बैठे, मालूम कर लो, इमाम साहब हैं, तमाम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मालूम कर लो, नमाज उसकी मान ली जाएगी, नमाज अदा हो गई। अब इसकी अदा मानी जाएगी नमाज, यानी अदा नमाज मान ली जाएगी। और अगर किसी ने मिसाल के तौर पर 3:30 बजे पढ़ी और 19 पे टाइम ही खत्म होता है और 3:30 पे असर का टाइम उससे पहले शुरू हो चुका होता है, अब किसी ने नियत बांधी, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज वक्त जोहर, नमाज पढ़ ली। बताने वाले ने बताया कि भाई साहब कौन सी नमाज? बताया जोहर की। कहा नमाज का टाइम तो रहा नहीं, जोहर का टाइम तो 3:19 पे खत्म हो चुका था, असर का टाइम है ये। और नियत कैसी बांधी? नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज वक्त जोहर, और जोहर का वक्त है नहीं। अब अगर ऐसी नियत बांध ली है तो उसकी नमाज तब भी जोहर की अदा हो जाएगी, अब कज़ा मानी जाएगी। नमाज तो हो गई, दोहराना नहीं पड़ेगा। अंदर बांधी है कज़ा के नियत से तो अदा मानी जाएगी, और टाइम के बाहर कज़ा की नियत के साथ बांधी है तो उसकी कज़ा मान ली जाएगी। नमाज दोनों हालतों में हो जाएगी, दोहराना नहीं पड़ेगा। ये एक बात मैंने मसले की अर्ज कर दी। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो नमाजों की हिफाजत करने वाले ऐसे मोमिन कामयाब हो गए। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो मैंने विरासत की बात की है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून। अल्लाह ने फरमाया यही वो लोग हैं जिनको विरासत मिलेगी और सच्चे वारिस हैं। किस चीज के सच्चे वारिस? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। यही वो लोग हैं जिनको जन्नतुल फिरदौस विरासत में मिलेगी। हम आप तो वो हैं, सही अमाल कर जाए तो वो तो हमारे आपके लिए है। अरे बोलो है कि नहीं? घाटा नहीं है, उनका यहीं तक है, चाहे जितना बना लें चाहे जितना कर लें यहीं तक है। हमारा आपका मामला वहां का है, बहुत कुछ यहाँ भी है और असल मामला वहाँ का है। अरे बोलो है कि नहीं? ये न सोचो कि पता नहीं यार कुछ हवा उधर हकीकत भी है। नहीं नहीं, हमारी आंखें देख नहीं सकती, हमारे सीने सोच नहीं सकते, दिल पे वहमो गुमान नहीं गुजर सकता। अल्लाह के महबूब ने मेराज वाली रात में देख लिया। मैं ये शेर बराबर पढ़ा करता हूँ कि उम्मत को रोज़े महशर इनाम जो मिलेगा, उम्मत को रोज़े महशर इनाम जो मिलेगा, मेराज में वो सब कुछ, मेराज में वो सब कुछ सरकार देख आए, मेराज में वो सब कुछ हमारे आका ने देखा है। तो बोलो हमारा आपका घाटा?
कसम है रब्बे काबा की, घाटा है ही नहीं। घाटा तो उनका है जिनका मामला यहीं तक है, हमारा तुम्हारा घाटा नहीं है। अल्लाह बदआमाली को दूर करने की और सही अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। रात आई, दिन जा चुका, रात आई, रात खत्म हो जाएगी, दिन आएगा, बस इसी का नाम है। क्या बताएं जिंदगी का हाल। मौत ने न जाने चुपके क्या कहा, जिंदगी खामोश होकर रह गई। कोई भरोसा भरोसा नहीं है इसका। घाटा हमारा आपका नहीं है। सही अमाल करें, कोताही न बरतें, गफलत न करें। टाइम आएगा। ये शैतान की तरफ से वसवसा। टाइम कब आएगा जब हमको पता नहीं, कब हमारी जिंदगी की शाम हो जाए, पता ही नहीं हमको। हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। अरे बोलो है कि नहीं। उनका मामला यहीं तक है, हमारा आपका मामला वहां तक है। कहां तक है? वहां तक है। वो गए, सांस गई, खत्म हो गया, और हमारी शुरुआत वहां से। सांस आखिरी हो गई, दमे आखिर है, कब्र में उतारे गए। ईमान वाले के लिए तो जन्नती बिस्तर है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हमारा मामला ही अलग है। रूह परवाज कर गई, कब्र में उतारे गए, जन्नती बिस्तर पहले ही से है। अरे बोलो है कि नहीं। जन्नत की खिड़की खोली जाएगी कि हवा खाओ, आराम से सो जाओ, कोई जगाने वाला नहीं। जब सूर फूंका जाएगा, लोग कब्रों से उठेंगे, तब वो निकल करके पुलसरात से पार होकर मैदान महशर में जमा होंगे। अल्लाह हमें सच्चा यकीन नसीब फरमाए। घाटा हमारा आपका नहीं। उधर जैसे रूह निकली फौरन शुरू है काम, और इधर रूह निकल गई, अमाल अच्छे तो जन्नती बिस्तर मिला, सो गए आराम से। कौन पाएगा हमको आपको। अरे बोलो भाई है कि नहीं। दुनिया की जिंदगी पर न जाइए, दुनिया की जिंदगी पर न जाइए कि किसके साथ क्या है। नहीं, असल तो वो है। जन्नत में पहुंच जाएंगे। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, जन्नती जन्नत में तो पहली बात तो कोई न कोई पस्ता कद होगा, न कोई काला होगा, न शक्ल सूरत का इधर उधर होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह सबको हुस्न दे दिया जाएगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा कद दिया जाएगा। 60 गज का लंबा जन्नती होगा। जन्नत 60 गज का लंबा। इंतजामात इतने ज्यादा कि दुनिया में तो कोई कर ही नहीं पाएगा। ऊंचे ऊंचे तख्ते हैं। कितने ऊंचे, कुरान ने खुद बयान किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फीहा सुरुरुम मरफूआ। ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे। तख्ते कैसे? उनकी पट्टियां सोने चांदी की, उसके ऊपर जो पटरे लगे होते वो सोने चांदी के, उसके ऊपर गद्दे होंगे। ऊपर दबीज रेशम हरे रंग का, नीचे दबीज रेशम हरे रंग का, बीच में मुश्को जाफरान भरा हुआ है। ऐसे ऐसे गद्दे मिलेंगे और ऐसे ऐसे वो तख्ते मिलेंगे। ये सब ईमान वालों के लिए कितना अल्लाह ने इंतजाम कर रखा है। आका फरमाते हैं, सुबह से शाम तक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ कर भी जन्नत की दीवार के मोटापे को पार न कर पाए। आका फरमाते, एक ईंटा सोने का होगा, दूसरा चांदी का होगा, गारा मुश्को जाफरान का होगा। ऐसी दौलत मिलने वाली है ईमान वालों। मरियल दुनिया की चक्कर में उस सौदे का नुकसान न किया जाए। ये दुनिया मरियल है, मरी खाना है। यहाँ बचा बचा कोई नहीं है। यहाँ बचा कोई नहीं, सबका अंजाम वही रहा है। वालिद साहब एक वाकया बयान करते थे, उसी पर बात खत्म करूंगा। टाइम कुछ ज्यादा होता जा रहा है और हिम्मत भी अपनी कम है। उम्र तो बहरहाल हो ही रही है, सफर करते करते भी थोड़ा बहुत इधर उधर। एक आदमी कश्ती चला रहा था, मल्लाह। उस पर बैठे हुए आदमी ने पूछा, जो कश्ती पर बैठकर अपना दरिया का सफर कर रहा था, पार कर रहा था, उसने उस मल्लाह से पूछा, भाई तुम्हारे बाप के दादा क्या करते थे? कहा दादा ही कश्ती चलाते थे। कहा है कि नहीं है? कहा दादा का इंतकाल होगा। कहा कैसे हुआ? कहा कश्ती अचानक भंवर में फंस गई, डूब गए, डूब करके वो मर गए, इंतकाल हो गया।
کہا تمہارے باپ کیا کرتے تھے؟ وہ ہیں؟ کہا وہ بھی نہیں ہے، ان کا بھی انتقال ہوگا۔ کہا کیسے ہوا؟ کہا دریا میں کشتی چلا رہے تھے، کشتی چلاتے چلاتے کشتی ڈوب گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے کہا بہت بڑے بیوقوف آدمی۔ کس نے کہا؟ بیٹھے ہوئے مسافر نے اس ملاح سے، کھیون ہار سے کہا جو کشتی چلا رہا تھا، کہا بہت بیوقوف آدمی ہو، جس دریا میں کشتی چلاتے چلاتے تمہارے دادا کا ڈوب کر انتقال ہوا ہو، تمہارے باپ کا ڈوب کر انتقال ہوا ہو کشتی چلاتے چلاتے، اور تم بھی وہی کام کرتے ہو، دریا میں کشتی چلا رہے ہو۔ کہا بھائی صاحب ہم سے تو غلطی ہو گئی، آپ بتا دو آپ کے دادا کیا کرتے تھے؟ ارے کہا کھیتی باڑی کام و کاج کرتے۔ کہاں ہے؟ کہا نہیں ان کا انتقال ہوگا۔ کہا ہوا کہاں؟ کہا گھر میں انتقال ہوا۔ کہا اچھا، کہا باپ تمہارے؟ کہا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ارے کھیتی باڑی کام کاج دکانداری فلانا ٹھکانا کرتے تھے۔ کہا انتقال ان کا بھی ہوگا۔ کہا کہاں ہوا؟ گھر میں انتقال ہوا۔ تو کہا ہم سے زیادہ بیوقوف تم خود ہو۔ کہا خیریت؟ کہا جس گھر میں تمہارے دادا کا انتقال ہوا ہو، جس گھر میں تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہو، خاندان کا خاندان جا چکا ہو، اب بھی تم اسی گھر میں موجود ہو، ہم سے زیادہ بیوقوف تو تم ہو۔ تو دنیا یہ مرنے کی جگہ ہے، جینے کی جگہ نہیں ہے۔ جینے کی جگہ ہمیشہ کی زندگی تو وہاں کی۔ ہم آئے تھے یہاں تیاری کرنے کے لیے، ہم آئے تھے یہاں تیاری کرنے کے لیے کہ یہاں چلتے پھرتے تجارت کریں گے تو اللہ کے محبوب کا طریقہ ہوگا، کوئی کام کریں گے اللہ کے محبوب کا طریقہ ہوگا، شادی میں اللہ کے محبوب کی سنت کو دیکھیں گے، کاروبار میں اللہ کے محبوب کی سنت کو دیکھیں گے، ملازمت میں بھی اللہ کے محبوب کا طریقہ دیکھیں گے۔ جب یہ ساری چیزیں اندر آ جائیں گی تو دنیا میں رہ کر ساری زندگی عبادت میں لکھی جائے گی، آخرت میں جا کر جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیں گے۔ ہم تو یہاں اس کے لیے آئے تھے۔ آقا نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہا کرتا ہے، او عابر سبیل، یا جیسے مسافر رہا کرتا۔ ہم تو مسافر ہیں یہاں دنیا میں، مسافر ہیں۔ خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔